Hello guys, I'm Priya Rohira. Today is going to explain conditional statements. Let me explain you what are these. Conditional statements are those statements which execute the statements according to given condition. Condition can be true or false. जब भी हम कोई condition देते हैं तो condition या तो true होगी या false होगी. If your condition is true, it means written after if will get executed like this. And if your condition is false, then statements written after else will get executed like this. Just let's try this example. Here I have given if your age is greater than or equal 18, then this output will come. If it is false, then this output will come. So earlier I am giving suppose age 20. My output is this because my condition is true. And if I am giving 12, then you cannot give what? That means my condition is false. That's why this statement will get executed. This is my first category of if else statement. Next is suppose in this next statement I have not used else statement. अगर मैं else statement use ना करूँ तो क्या होगा? In this case, if your condition is false, then no message will be shown. अगर आपकी condition गलत है और फॉल्स में आती है तो आपके पास कोई मैसेज शो नहीं होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मैसेज शो कर रहे थे यू कैन नॉट गिव वोट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रन करें, अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 है, सपोज अभी लेस देन 18 है 12, तो इस केस में कोई भी मैसेज आपके सामने शो नहीं होगा. इट विल नॉट शोन एनी मैसेज टू यू. सो इफ यू वॉन्ट कि इफ माई कंडीशन इज फॉल्स, then you need to use else statement. And suppose if you don't want to show any other message if your condition is false, then no need to use it. You can use your logical operators to join condition in conditional statements also. Like I had used and. Here you can use or also. आपको पता है कि and के केस में my all given condition should be true if I want to produce this output. And if any of the condition is false, then this output will get produced. Let's try this example. Suppose here I am giving marks should be greater than or equal 80 or hobby should be sports. If it is yes, then you can get the bonus 10 marks. Otherwise, if any of the condition is false, then this statement will get executed. So आपने ध्यान दिया, here marks is 39 और hobby sports है. Marks 39 है जो 80 से कम है और हॉबी स्पोर्ट्स है. दैट मीन्स मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड. जस्ट ट्राई दिस एग्जाम्पल. सो माई आंसर इज यू विल नॉट गेट बोनस 10 मार्क्स बिकॉज माई बोथ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड. नाउ सपोज अगर मैं अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई उसमें डाल दूँ, देन you will get bonus 10 marks. अब मेरा आउटपुट क्या आएगा? ये because my both the conditions are true. So you can use and or you can use or. और के केस में आपको पता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आउटपुट ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई तब हम फॉल्स में जाते हैं. पर एंड के केस में my all condition should be true. I hope this point is clear to you. Here I had explained you only if else. Now next category I will explain you elif statement when I want to check multiple condition. अब जैसे सपोज मेरे पास में कई सारी कंडीशन है तो मैं सिंपल if else से काम नहीं चला सकती. In that case I will use the elif statement. जैसे सपोज अब मैंने एक प्रोग्राम बनाया है which assigning grade A B C, जैसे कि आपको मार्क्स की ग्रेड्स भी मिलती थी तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते थे. सो हियर आई हैड यूज 91 to 100 जिनकी कैटेगरी है वो ए में जाएंगे, जो 81 to 90 में है वो बी में जाएंगे. Likewise 71 to 80 will go in C. And suppose these all three are my condition and after that I am having this multiple condition. So to check the multiple condition I will use the elif statement. It is very simple. First I will start with my first condition with if. Okay, if marks is greater than 91 to 100 so your grade will be A. Okay, next category elif statement and my next condition. If it is 81 to 90 then grade is B. My next condition, next elif statement,
71 to 80. सपोज अगर मेरे पास में 61 to 70 भी होता तो मैं एक एलिफ और यूज़ करती, बट सपोज मुझे और आगे कोई कंडीशंस यूज़ नहीं करनी है, तो लास्ट में से सपोज मेरी कंडीशंस, मेरे जो मार्क्स हैं वो इन तीनों कैटेगरी, चारों कैटेगरी को ही नहीं फुलफिल कर रहे हैं, तो एट लास्ट विच मैसेज यू वांट टू शो, तो वो आप एल्स में लिख सकते हैं. सो एट द लास्ट इफ़ यू डोंट हैव एनी कंडीशन and if you are not satisfying any condition, then this message will get displayed. This statement will get executed अगर आपकी कोई condition true नहीं होती है. Just try this example. मैं run करके बताती हूँ आपको. Suppose my first category is 98. It is my grade A category. So you can see A. Okay. Likewise B और C भी आपके सामने show होगा. अब मैं आपको U R fail वाली category बताती हूँ. Just try. अगर मेरे suppose marks 56 ही हैं तो यू आर फेल. ओके, सो दैट मीन्स ये वाला केस, ये वाला स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कोई भी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई नहीं होती है, और अगर आप ये नहीं यूज़ करते हैं तो कोई मैसेज शो नहीं होगा अगर आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होती है. तो जनरली वी आर यूजिंग द लास्ट एल्स स्टेटमेंट. अब मेरी नेक्स्ट कैटेगरी है नेस्टेड इफ. व्हेन इफ इनसाइड इफ इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ. जब एक इफ के अंदर मैं दूसरा इफ यूज़ करती हूँ तो वो कहे जाते हैं नेस्टेड इफ. लाइकवाइज सपोज एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स. इन 3 नंबर्स में से मुझे फाइंड आउट करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है. सो लेट्स चेक माई फर्स्ट इफ. आई विल स्टार्ट विद ए इज ग्रेटर देन बी. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, then in this if I had used another if. तो I will check A is greater than C. A को मैंने B से चेक किया, कंडीशन ट्रू. फिर मैंने A को C से चेक किया. अगर कंडीशन ट्रू है मतलब A दोनों से बिगर है, दैट मीन्स A is the greatest number. If it is false, so what meaning is C is the greatest number, because B तो हमारी लाइन से पहले ही इस स्टेटमेंट पे आउट हो चुका है. वो A B से बड़ा था तभी तो उसने इस वाले स्टेटमेंट को चेक किया. आपको पता ही है कि हम ट्रू पार्ट में कब आते हैं, जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है. अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तभी वो इसमें चेक करेगा. अब सपोज फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ए बी से बड़ा है ही नहीं, तो सीधे आप आ जाओगे इस एलिफ पे. सो ए तो हो गया लाइन से बाहर, आप क्या बचे बी और सी. तो आप क्या चेक करोगे, ए बी ग्रेटर देन सी. अगर ये बी बड़ा है तो क्या होगा, बी इज द ग्रेटेस्ट. मेरे पास और कोई कंडीशन नहीं है. लास्ट एल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट एल्स केस में क्या आ जाएगा, C इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, इसी प्रोग्राम को ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इसी तरह से करें, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू नेस्टेड इफ, दैट्स वाई आई टुक दिस एग्जाम्पल. नाउ द सेम एग्जाम्पल विद सम अनदर वे आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. Now in this example I am using 4 numbers. Very simple. So you will take this first A. If it is greater than B, greater than B, greater than C, greater than D, that means A is the greatest number. Elif next category, फिर B को चेक करेंगे, फिर Elif, फिर C को चेक करेंगे. सपोज A को चेक किया, B को चेक किया, C को चेक किया. ओके, अगर मेरी इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो लास्ट कंडीशन क्या बची, D इज द ग्रेटेस्ट नंबर. इसलिए मुझे D को इस तरह से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, ट्राई दिस एग्जाम्पल, आई विल एक्सप्लेन यू. D इज द ग्रेटेस्ट नंबर. एज यू कैन सी D इज 89. सपोज अब मैं यहाँ पे A को ग्रेटेस्ट कर देती हूँ. ओके, मैंने डाल दिया 110 और मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रही हूँ, तो A इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, सो लाइकवाइज you can find out the greatest number using this method also. So we are having various method to check conditions. So I had explained you today simple if, then I had explained you if else, then I had explained you if else, then I had explained you nested if. So these are few types through which we can use the conditional statement. I hope this point is clear to you.